Today, in this video, we learn the passive voice of past indefinite tense. I write some sentences in past indefinite tense. She gave me a pen. I liked this cake. We ate mangoes. They told a lie. She read a storybook. These sentences are in simple past tense, past indefinite tense. Now we convert these sentences into passive voice. A pen was given me by her. A pen was given me by her. यहाँ देखिए ए पेन ऑब्जेक्ट है तो यहाँ सब्जेक्ट बन गया, फिर वाज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. अगेन आई लाइक दिस केक. दिस केक एक वजह है इसलिए वाज. दिस केक वाज liked by me. This cake was liked by me. We ate mangoes. Mangoes बहुवचन है इसलिए mangoes were eaten by. we का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? us. Mangoes were eaten by us. They told a lie. ये lie एक वचन है इसलिए was told by. they का ऑब्जेक्टिव केस them. A lie was told by them. She read a storybook. A storybook was read by her. यहाँ we have changed all the sentences into passive voice. Now I write the rule, structure of the sentence. The structure of the sentence is subject plus was या where. सब्जेक्ट प्लस was या where. एक वजन है तो was, बहुवचन है तो where, प्लस V3 past participle form of the verb plus by plus object. In this way we can change these sentences into passive voice. Once again I read all these sentences written on the board. She gave me a pen. वह मुझे एक कलम दिया. एक कलम उसके द्वारा मुझे दिया गया. A pen was given me by her. A pen was given me by her. इसको हम लोग दो तरह बना सकता है. और दूसरा तरह है I was given a pen by her. क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक मी है एक ए पेन है. तो मी का मी ऑब्जेक्टिव केस में है तो उसको नॉमिनेटिव केस किया है तो आई वॉज गिवन ए पेन बाय हर. यहाँ है ए पेन वॉज गिवन मी बाय हर. इस तरह हम लोग दो तरह बना सकते हैं. आई लाइक्ड दिस केक. आई लाइक्ड दिस केक. केक है यहाँ, दिस केक है यहाँ ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग आगे लाए. तो दिस केक वॉज लाइक्ड बाय मी. वी एट मैंगोस. मैंगोस वेयर ईटन बाय अस. They told a lie. They told a lie. A lie was told by them. She read a storybook. A storybook was read by her. Read का और read का स्पेलिंग एक तरह है लेकिन बोलने में पास्ट टेंस में और पास्ट पार्टिसिपल में read पढ़ेंगे. तो अब हम लोग इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाएंगे इन वाक्यों का और इसका पासिव वॉइस बनाएंगे.
एक सेंटेंस में लिखने जा रहा हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आई रोट ए लेटर, आई रोट ए लेटर। इसका इंटरोगेटिव क्या है? डिड आई राइट ए लेटर, डिड आई राइट ए लेटर। इसका नेगेटिव है आई डिड नॉट राइट ए लेटर। ये है इंटरोगेटिव, ये है नेगेटिव। अभी इसका पासिव वॉइस हम लोग बनाएंगे। इंटरोगेटिव और नेगेटिव का पासिव वॉइस हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे। इसका पहले हम 2-3 वाक्य और लिखने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू राइट सम मोर सेंटेंसेस। शी बॉट ए न्यू कार, शी बॉट ए न्यू कार अफर्मेटिव है, पास ये एक्टिव वॉइस में अफर्मेटिव सेंटेंस है। अभी इसका इंटरोगेटिव डिड शी बाय ए न्यू कार, क्वेश्चन मार्क। शी डिड नॉट buy a new car, is the negative हो गया। अभी one more sentence, Raju told me the truth, राजू मुझसे सच बोला। Did Raju tell me the truth? Raju did not tell me the truth. ये नेगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस। We taught him English. Did we teach him English? We did not teach him English. In this way, I have given 4 sentences in present indefinite tense and I have changed them into interrogative and negative. Now we will learn how to change them into passive. First I make the passive of the affirmative sentence, then the negative and interrogative sentence will be converted into passive. I wrote a letter. A letter was written by me. A letter was written by me. A letter was written by me. Did I write a letter? Was a letter written by me? क्वेश्चन मार्क। ये इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। अभी आई डिड नॉट राइट ए लेटर, ए लेटर वाज नॉट रिटन बाय मी, इसका पॉजिटिव वॉइस है नेगेटिव सेंटेंस का। अभी शी बॉट ए न्यू कार, ए न्यू कार
was bought by her। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पासिव है was a car, इसको आगे लगाना है was a car, was a new car bought by her। जैसे bought पास्ट टेंस है, by का पास्ट टेंस है bought, पर पास्ट पार्टिसिपल भी bought है BOUGHT। She did not buy a car, a car was not bought by her। अभी राजू told me the truth, the truth was told me by राजू। इसमें हम लोग दो प्रकार बना सकते हैं, हम दो ऑब्जेक्ट है, एक मी है, एक द ट्रूथ है। तो आप द ट्रूथ वाज टोल्ड मी बाय राजू भी लिख सकते हैं, नहीं तो आई वाज टोल्ड द ट्रूथ बाय राजू भी लिख सकते हैं। आप जिस तरह मन करे वैसे लिख सकते हैं, दोनों में से। वाज द ट्रूथ टोल्ड मी बाय राजू, इसका इंटरोगेटिव हो गया। ये भी ऐसे ही बना सकते हैं, वाज द ट्रूथ टोल्ड मी बाय राजू, was I told the truth by Raju, इस तरह भी बना सकते हैं। राजू did not tell me the truth, the truth was not told me by Raju। इसको भी I लगाकर भी बना सकता है, I was not told the truth by राजू। तो इस तरह दो प्रकार हम लोग बना सकते हैं। We taught him English, English was taught him by us, taught him by us। इसमें भी दो ऑब्जेक्ट है, इसलिए he was taught English by us भी लिख सकता है। दूसरा, did we teach him English, was English taught him by us। इस तरह हम लोग बना सकते हैं। और दूसरा तरह है was he taught English by us। इसके अंत में लास्ट में आपको प्रश्न चिन्ह देना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अंत में प्रश्न चिन्ह चाहिए। We did not teach him English, English was not taught him by us। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, he was not taught English, he was not taught English by us। इस तरह हम लोग दो ऑब्जेक्टिव वाला सेंटेंस को जल्दी पा जान सकता है। इसमें दो तरह का ऑब्जेक्ट रहेगा, देखिए यहाँ हिम इंग्लिश, ये इंग्लिश उसको पढ़ाया गया, तो ये दोनों लगाकर हम यहाँ मी द ट्रूथ, इस तरह दो तरह हम बना सकते हैं। उसको मैं यहाँ आपको बताया। आई हैव गिवन मच सेंटेंसेस इन माय डिस्क्रिप्शन। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको और भी सेंटेंस मिलेगा, उस सेंटेंस को देकर आप लोग उसको बनाइए, समझ लीजिएगा। थैंक यू।